Welcome students. Uh, Today we are going to start session 3 of chapter 1 sets of class 11th mathematics, and today we are going to deal with very important topic of the chapter, that is subsets. So what is subset is that let A and B two sets. If the set of A is completely belongs to set B, अगर A का सारे के सारे एलिमेंट्स अगर B में होंगे, ठीक है, तो we call it as a is a subset of B, right? So set A is said to be subset of set B if every element of A is also an element of B. ठीक है, सिंबॉलिकली उसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, जो सी स्ट्रक्चर का होता है सबसेट का जो सिंबल है. सो व्हेन A is a subset of B, it means A is contained in B. A पूरा का पूरा B के अंदर में होता है. ओके, एंड B is called superset of A. एंड उसको अगर हम लोग उसको सुपरसेट के फॉर्म में लिखें तो उसका रिवर्स सिंबल होता है सबसेट का. ठीक है, एंड इफ A is not a subset of A, we write that A सबसेट के सिंबल में क्रॉस मार्क कर देंगे तो वो सबसेट नहीं होगा. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, the very two important point is that every set is a subset of itself. If we are talking about A is a subset of A, and null set is a subset of every set. So these two points are very important key points for under the subset topic. Okay. Okay, so now we are moving towards one more important property, that the total number of all possible subsets of given sets which contains n elements is 2 to the power n. अगर किसी set में अगर तीन elements हैं, if three elements are there in any one set, so we can make the possible number of subsets of that particular set is 2 to the power n, that is 2 to the power 3. Okay, 8 होंगे उसके. So now let us move towards one another topic, proper subset. If A is a subset of B and A is not equals to B, then we say that A is a proper subset of B. A B में contain होना चाहिए, B के A के सारे elements B में होना चाहिए, और A और B दोनों अलग अलग होना चाहिए. Okay, then we call it as A is a proper subset of B. So how will you define that? A, which is non-empty set A, is said to be proper subset of B if there is at least one element of B which is not in A. For example, A का सेट ले लीजिए 1 2 3 4 और B का सेट ले लीजिए 1 2 3 4 5. तो B का एक एलिमेंट जो है 5 वो A में नहीं है, लेकिन A के सारे एलिमेंट्स B में है. सो वी कैन से दैट A इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B. ओके, अगर दोनों इक्वल होंगे, दोनों में सेम एलिमेंट्स होंगे, सो दे आर नॉट प्रॉपर सबसेट. दे आर सबसेट बट नॉट प्रॉपर. द नेक्स्ट वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट वन, दैट पावर सेट. अभी इससे पिछले वाले टॉपिक में मैंने बताया था कि कितने पॉसिबल सबसेट्स होंगे, 2 टू द पावर n. सो उसका जो कलेक्शन होगा, द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉसिबल सबसेट्स आर कॉल्ड पावर सेट. ओके, वो जो कलेक्शन से जो सेट फॉर्म होंगे उसको हम लोग पावर सेट ऑफ ए बोलेंगे, एंड इट इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए. ओके, सो फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल्स टू ए बी सी, इसमें तीन एलिमेंट्स हैं. सो इसके कितने सारे सबसेट्स होंगे? इसके कितने सारे सबसेट होंगे? 8 सबसेट्स होंगे. ओके, so total number of subsets are 8, and here the first element what is wrote is that the empty set. We have already seen that the two key points, the set itself is a subset of the given set, मतलब A का subset होगा, और 5 is 5, that empty set is a subset of all every set. So ये दो elements इसमें compulsory होंगे. Okay, so now move towards another topic, that is subsets of the set R of all real numbers. So सभी real numbers के कितने सारे subsets हैं वो हम लोग देखेंगे. So first one is the set of all natural number, that is n, and the second one is W, that is set of whole numbers, and next is set of all integers, that is Z,
and z plus, that is set of all positive integers, z minus is the set of all negative integers. Sometimes we denote the set of integers by I also. ठीक है, किसी किसी बुक में I भी दिया हुआ है. And q is the set of all rational numbers, and set of all positive rational numbers is denoted by q plus, negative rational numbers q minus, and t is the set of all irrational numbers. So all these five types of sets are contained in real numbers. So real numbers क्या होगा, ये सभी के सभी का सुपर सेट होगा. Okay. So, very important topic, that is intervals as a subsets of R. If a b belongs to real number such that a is less than b, then we can define in any four of this. First is closed interval, दोनों closed होगा a और b. So उसमें उसका set builder form में कैसे लिखेंगे, x belongs to R such that a is less than or equals to x, less than or equals to b. So equal sign denotes that कि वो closed है दोनों side में. Now open interval open bracket में लिखेंगे, ये दोनों तरीके से लिख सकते हैं. और इसको set builder form में कैसे लिखेंगे, x belongs to R such that x is less than x, a is less than x less than b. So यहाँ पे दोनों में equal sign नहीं है, that means दोनों side वो open है. Right half open interval, राइट साइड ओपन है और मतलब हाफ ओपन है, और हाफ क्लोज्ड भी है, इसको हाफ क्लोज भी बोल सकते हैं. सो सी लेफ्ट साइड जो ए के साइड में स्क्वायर ब्रैकेट और बी के साइड में ओपन ब्रैकेट है, दैट मीन्स ए के साइड में वो क्लोज्ड है और बी के साइड में ओपन है. सो हाउ विल यू राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म, x belongs to R such that a is less than equals to x less than b. सो यहाँ पे इक्वल साइन कहाँ पे है, a के पास में. नाउ लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल, सो लेफ्ट साइड में ओपन है और राइट साइड में क्लोज्ड है. सो यहाँ पे ए के साइड में इक्वल साइन नहीं रहेगा और बी के साइड में इक्वल साइन रहेगा, क्योंकि बी के साइड में क्लोज्ड है वो, राइट. तो इसको नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखें. द फर्स्ट वन जो है वो जो डार्क डॉटेड लाइन है वो क्लोज्ड के लिए है, ओके. और जो बबल जो है जो डार्क नहीं है, दैट इज द ओपन वन. सो दिस इज द फर्स्ट केस, दैट इज बोथ आर डार्क बबल्ड, and the second one is open interval both open, and the third one is right open, right half open, and the fourth one is left half open. So these are the four different types of interval, and let us move towards the how to find the length of an interval. Suppose the length of each of the interval, that what we have seen just now, we have seen that a is less than b, so इसका length क्या होगा, b minus a. So in that way we have to find the length of any interval. Okay, so एक example देखेंगे यहाँ पर. First one is closed -2 3. So how will you write that x belongs to capital R such that -2 less than equals to x less than equals to 3. Second one, both are open, -2 3 open brackets, then x belongs to R such that -2 less than x less than 3. The third one is लेफ्ट साइड क्लोज्ड एंड राइट साइड ओपन है, -2 3 3 साइड में ओपन है, तो 3 के साइड में इक्वल साइन नहीं लिखेंगे और -2 के साइड में इक्वल साइन लिखेंगे. सिमिलरली द फोर्थ वन इज ओपन एट -2 साइड एंड क्लोज्ड एट 3 साइड. सो 3 के साइड पे इक्वल साइन लिखेंगे और -2 के साइड में इक्वल साइन नहीं लिखेंगे. ओके, सो लेट अस सी वन एग्जांपल. Write each of the following subsets of R as an interval. Now the set builder form is given, we have to write in interval form. So first one, see -3 के पास इक्वल साइन नहीं है, दैट मीन्स वहां पे ओपन है, और 5 के पास में इक्वल साइन है, दैट मीन्स वहां पे क्लोज्ड है. सो ये लेफ्ट ओपन है, लेफ्ट हाफ ओपन है. द बी में दोनों में इक्वल साइन नहीं है, सो ये दोनों साइड ओपन है, फुल ओपन है. एंड सी -2 के साइड में इक्वल साइन है तो वहां पे क्लोज्ड है, और 0 के साइड में इक्वल साइन नहीं है तो वहां पे वो ओपन है, तो ये राइट हाफ ओपन हो गया. एंड डी बोथ आर इक्वल साइन, बोथ दोनों में इक्वल साइन है तो दोनों ये क्लोज्ड है. सो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, और इसमें लेंथ भी फाइंड करना है. ओके, सो हाउ विल यू राइट द फर्स्ट वन, open bracket -3 5 close bracket, the length is 5 minus of -3, that is 8. And the second one is both are open, just now we discussed, and -5 -1, यहाँ पे लेंथ होगा आपका 4, दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो. The third one is -2 closed, -2 0 open,
लेंथ होगा यहाँ पे 0 माइनस ऑफ -2 दैट इज 2 and the last one is -4 4 -1 4 both are closed. Length will be 4 minus of -1 that will become +5. Okay, so this is an example based on interval. Now we will move towards another very important topic, that is universal set. Okay, so universal set is सपोज अगर हम लोग एक पर्टिकुलर सेट की बात कर रहे हैं, अभी जैसे रियल नंबर्स का सेट देखे थे और बाकी हम लोग वी हैव सीन कैपिटल एन, कैपिटल डब्ल्यू, जेड, तो वो ये सारे सेट्स के लिए रियल नंबर क्या होगा, सुपर सेट, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट. So it is denoted by capital U. If there are some sets under consideration, then the set of each of these is a subset. It's called a universal set, which is denoted generally denoted by U, capital U. For the set Z of all integers, the universal set can be the set of all rational numbers, or set R, that is real numbers. Second example, set of all acute angles triangles, या set of all obtuse angle triangle, या set of all right angles triangle. इन सब के लिए universal set क्या होगा, set of all triangles. Okay, so now we are going to start the next exercise, that is 1.3. So this is the first question. So make correct statement by filling in the symbol subset or not subset in the blank space. So हम लोग एक एक bit discuss करेंगे, उसके बाद इसमें fill up करेंगे. So first one 2 3 4, 2 3 4 जो है वो सारे सेकंड सेट में है, तो ये सबसेट होगा, राइट. और सेकंड बिट में ए बी सी, सो यहाँ पे ए जो है वो सेकंड वाले सेट में नहीं है. सो सबसेट का कंडीशन क्या है कि जो फर्स्ट वाले जो सेट के जो सारे एलिमेंट्स है वो सेकंड वाले सेट में होने चाहिए. सो यहाँ पे ए जो है वो सेकंड सेट को बिलोंग नहीं कर रहा, सो दिस इज नॉट ए सबसेट. ओके, now x is a student of class 11th of your school and x is a student of your school. So जो 11th क्लास जो है वो स्कूल के अंदर में ही है, ठीक है. सो सारे बच्चे जो स्कूल 11th में पढ़ते हैं वो स्कूल में ही रहेंगे. सो दिस इज अ सबसेट. ओके, सो नेक्स्ट वन, x is a circle in the plane, x is a circle with radius 1. तो इसमें जो फोर्थ वाला जो बिट है, रेडियस 1 के जो सर्कल है वो लिमिटेड होंगे, थोड़े रहेंगे, जबकि प्लेन में जितने भी सर्कल बनाएंगे वो 1 2 3 कितने भी अलग अलग रेडियस के सर्कल्स हो सकते हैं. सो वो सेकंड सेट में नहीं है, राइट. सो दिस इज नॉट ए सबसेट. द फिफ्थ बिट इज x इज ए ट्राइंगल इन द प्लेन एंड x इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन. सो दोनों अलग अलग फिगर है, सो दिस इज आल्सो नॉट सबसेट. x is an equilateral triangle in the plane, x is a triangle in the plane. So सारे ट्राइंगल्स में से कुछ इक्विलैटरल ट्राइंगल्स होंगे जो कि सेकंड वाले सेट में होंगे, तो सिक्स्थ वाला जो है वो सबसेट होगा. ओके, सो नाउ द सेवेंथ बिट, x इज एन इवन नेचुरल नंबर एंड x इज एन इंटीजर. सो जितने भी इवन नेचुरल नंबर है वो सारे इंटीजर्स ही होते हैं. सो दिस इज द सबसेट ऑफ द सेकंड सेट. ओके, सो ये सारे आंसर्स हैं. वी हैव एक्चुअली हमको ये फिलअप करना था, so we will move towards the next question. The next question is, examine whether the following statements are true or false. So first question, a b is not a subset of b c a. This is false, क्योंकि सारे के सारे जो एलिमेंट है वो सेकंड सेट में है, that means ये सबसेट होना चाहिए, जबकि यहाँ पर नॉट सबसेट दिया हुआ, so this is false statement. Now the second one, a e and the राइट हैंड साइड में दिया हुआ x इज ए वोवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट. सो ए ई दोनों वोवेल्स होते हैं, राइट. ए ई जो है वो दोनों वोवेल्स होते हैं और टोटल वोवेल्स हम लोग के पास 5 है, ए ई आई ओ यू. सो दिस इज अ सबसेट ऑफ द सेकंड सेट, सो इट इज ट्रू. एंड द थर्ड वन 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ 1 3 5. अब ये जो 2 जो है वो सेकंड सेट में है नहीं, तो ये सबसेट नहीं होगा, सो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट. ओके, नेक्स्ट वन, A is a subset of A, B, C. This is true, क्योंकि वो सारे जो A जो एलिमेंट है वो सेकंड वाले सेट में है. Now the fifth one is very different. A belongs to A, B, C. सेट कभी बिलोंग नहीं करता है, वो या तो सबसेट होगा या तो सबसेट नहीं होगा. ठीक है, एलिमेंट, इफ अगर वो सेट की जगह पे एलिमेंट लिखा होता तो ये सही होता, बट वो सेट लिखा हुआ है. ठीक है, सो दिस इज फॉल्स.
ये ट्रू कब होगा? जब ये वाला जो सेट है वो सेट के अंदर में रहेगा, तभी वो ट्रू होगा। The last one, x is an even natural number less than 6. x is a natural number which divides 36. So 36 को डिवाइड करने वाले कितने नंबर्स होते हैं? 1 2 3 4 6 9 12 18 36। और लेस देन 6 नेचुरल नंबर जो होते हैं इवन नेचुरल नंबर, सो 2 और 4 वो दोनों उसमें है, सो करेक्ट है, इट इज अ सबसेट। So our answer is this one. So explanation is also written along with that, so you can note it down by clicking the pause button. So now we are moving towards question number, okay, so third question जो है, let a is equals to 1 2 3 4। 3 4 जो सेट है वो एलिमेंट है वो सेट का, जो सेट के फॉर्म में लिखा हुआ है 5। which of the following statements are correct and why? The first one, 3 4। अब ये 3 4 जो है वो ए का एलिमेंट है, वो सेट नहीं है। इज दैट क्लियर? 3 4 जो है वो जो सेट में लिखा हुआ है वो ए का एलिमेंट है, वो सेट अलग से नहीं है, सो दैट इज फॉल्स। अगर ये बिलोंग्स रहता तो ट्रू होता, दैट इज द सेकेंड वन। सो सेकेंड वन इज करेक्ट बिकॉज 3 4 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, इट इज नॉट अ सेट। ओके, नो द नेक्स्ट वन में जो एलिमेंट, अभी जो मैंने कहा था कि 3 4 जो है वो एलिमेंट है, अब वो एलिमेंट सेट के अंदर में है, सो वो सबसेट होगा ए का, दैट इज करेक्ट ओनली। नाउ 1 बिलोंग्स टू ए, 1 इज अ एलिमेंट ऑफ ए, सो दैट इज करेक्ट। 1 इज अ सबसेट ऑफ ए। नाउ 1 जो है वो सेट में नहीं लिखा हुआ है, दैट मीन्स वो एलिमेंट है, और एलिमेंट जो है वो सबसेट नहीं हो सकता, क्योंकि वो सेट होगा तभी वो सबसेट डिफाइंड होगा वहां पर। सो अगर ये इम्प्लाई बिलोंग्स रहता तो करेक्ट होता, सो दिस इज फॉल्स, इनकरेक्ट। नाउ द सिक्स्थ वन, 1 2 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, इट्स करेक्ट, क्योंकि 1 2 5 जो है सारे के सारे ए में है, सो दैट इज करेक्ट। तो सिक्स्थ वन जो है वो करेक्ट है। नाउ द सेवेंथ वन, 1 2 5 बिलोंग्स टू ए। अब ये 1 2 5 जो सेट है वो ए का एलिमेंट नहीं है, सो दिस इज इनकरेक्ट। 1 2 3 is a subset of A. Now 3 is not an element of A. 3 4 उसका एलिमेंट है सेट के फॉर्म में, बट 3 उसका एलिमेंट नहीं है, सो एट्थ वन इज false. Why? Because 3 does not belongs to A. Now the ninth one, empty सेट का सिंबल है 5 जो है, that belongs to A, but 5 क्या होता है? सेट होता है। सो सेट कभी बिलोंग नहीं करेगा, आई मीन टू से सेट इसमें नहीं रहेगा, क्योंकि इट इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। जो 5 एलिमेंट है वो ए का, 5 जो है वो ए का एलिमेंट नहीं है, दैट इज वाई ये इनकरेक्ट है। जबकि टेंथ वाला जो है 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, and we have seen a very important point, key point in under subset, that null set, empty set is a subset of every set, so this is true। okay, now the 11th one again is incorrect। क्यों? क्योंकि 5 जो है वो उसका एलिमेंट नहीं, एक एलिमेंट नहीं है। ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके, नाउ let us move towards these are the answers, and let us move towards fourth question। Fourth question, we have to write down all the subsets of the following sets। so subsets का हम लोग मैंने बताया था कि कितने subsets possible होंगे, 2 to the power n। so a की एलिमेंट है, that means 2 to the power 1, that is 2। तो इसके सबसेट्स क्या क्या होंगे? एक तो नल सेट होगा, नल सेट सभी का सबसेट है, और एक द सेल्फ सेट, जो ए सेट है वो ए का सबसेट होगा। ओके, तो ये दो सबसेट यहाँ पे मिल गए, एक नल सेट और एक ए। सिमिलरली ए बी का एक सेट ए होगा, और एक सेट बी होगा, और एक सेट 5 होगा, और एक ये वाला सेट होगा जो दिया हुआ है। और 1 2 3 यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, तो 2 to the power 3 दैट इज 8 एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ पे काउंट करते हैं, चलो 5 और 1 2 3 दो अलग कर लिए, सो 2 हो गया, और एक 1 सिंगल एलिमेंट,
2 single element, 3 single element, 1 2, 2 3, 1 3. So total 8 हो गए. Now the last one, fourth bit 5. So 5 null set है, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है. So 0, that means उसका n कितना होगा, 0 होगा, तो 2 to the power 0 1. So इसका जो सबसेट होगा वो 5 itself होगा. Okay, so these are the solution. Now we will move towards the fifth question. How many elements has P of A if A is equals to 5? अभी मैंने बताया था कि अगर नल सेट होंगे तो उसके कितने सबसेट होंगे, एक ही सबसेट होंगे, तो इसका जो एलिमेंट होगा वो एक ही होगा, दैट इज 5. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द सिक्स्थ क्वेश्चन. Sixth question, it is the interval is given in the set builder form and we have to write in roster form, that is interval form. तो अभी हम लोग एग्जांपल देखे थे, यहाँ पे फर्स्ट बिट में देखो -4 में इक्वल साइन नहीं है, देयर इज नो इक्वल साइन इन -4 एंड इक्वल साइन इज देयर फॉर 6. सो -4 के पास में ओपन है और 6 में क्लोज्ड है. सो ओपन ब्रैकेट -4 6 क्लोज ब्रैकेट. नाउ द सेकेंड बिट -12 इक्वल साइन नहीं है, दोनों में इक्वल साइन नहीं है, सो दोनों साइड वो ओपन है. और थर्ड बिट में 0 के साइड में वो क्लोज्ड है क्योंकि इक्वल साइन है, और 7 के साइड में इक्वल साइन नहीं है, दैट मीन्स वो ओपन है. और लास्ट बिट दोनों साइड में इक्वल है तो दोनों क्लोज्ड होंगे, सो इसके आंसर्स ये होंगे, राइट. एंड सेवेंथ क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म. अब ये इंटरवल जो दिया हुआ उसको सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब जो क्वेश्चन 6 में जो दिया हुआ ऐसे ही लिखना है. तो फर्स्ट वाला मैं रीड कर रहा हूँ, ध्यान देंगे. x such that x belongs to real number, -3 दोनों ओपन है, सो इक्वल साइन नहीं बोलना है. -3 लेस देन x लेस देन 0. नेक्स्ट वन, बोथ आर क्लोज, सो दोनों में इक्वल साइन होना है. x such that x belongs to r, 6 लेस देन or equals to x लेस देन or equals to 12. यहाँ पे 6 में ओपन है, थर्ड बिट में 12 में क्लोज्ड है. So x such that x belongs to capital R, 6 less than x less than or equals to 12. फोर्थ में -23 में लेफ्ट साइड क्लोज्ड है और राइट साइड ओपन है. सो x belongs to x such that x belongs to R, -23 less than x less than or equals to x less than 5. So इसके आंसर्स ये होंगे. ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8. Right. So what universal set would you propose for each of the following? The set of right angle triangles, the set of isosceles triangle. ये क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस किए थे, तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा? The set of all triangles. So answer is the universal set is the set of all possible triangles for each of the given set. Okay. Now the last question, given the set A, B, C, which of the following may be considered as universal set for all the three sets A, B and C? ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो तीनों में होने चाहिए. जो हम लोग के पास जो डिस्प्ले हो रहा है 1 2 3 4. So if you observe very carefully, the last the second last one, that is third one, the third one, all the elements, that is 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So all these elements are either in A, B and C. ठीक है. So इसका आंसर क्या होगा? What is the answer of this question? What is the answer of this question? अगर हम लोग अगर थर्ड लेते हैं तो इसमें 8 नहीं है, राइट. 8 नहीं है इसमें, तो दैट दिस इज नॉट पॉसिबल, 5 ले ही नहीं सकते हैं. अगर हम लोग फोर्थ लेते हैं तो 1 to 8 है बट 0 नहीं है यहाँ पर. So only possible is that the third one. Okay, so answer is third. I think it is clear to all of you, right? So I think this is the last question and we have completed the third exercise. In the next session we'll start some new concepts with new exercise 1.4. So that's all for today's session. Thank you very much.